Hello students, now we are on the last topic of the chapter state of matter. In last video we just studied the Dalton's law and mole fraction relation with that law. Now we are on the topic that is deviation of real gas from ideal gases. So how real gases deviate their behavior in comparison to the ideal gases, we will understand it with the help of a graph. Okay, so first of all we should know that what are ideal gases. Okay, so ideal gases are those which follow the ideal gas equation, that is PV equal to nRT. So those gases which 100% follow this law, means PV equal to nRT, those gases are known as the ideal gases. But actually in reality no gas is an ideal gas, and only the gases behave near to the ideal gases, and there is also a condition, that is the low pressure and the high temperature. So these two conditions are necessary. Then after the gases start to behave like a ideal gas, but 100% they do not behave just like the ideal gases. Okay, so ideal gases follow PV equal to nRT, but the real gases do not follow. Real gases do not follow ideal gas equations, that is PV equal to nRT, राइट. तो हमारा जो रियल गैसेस हैं, जो रियलिटी में एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, वो कोई भी गैस इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है, जबकि आइडियल गैसेस जो इमेजिनरी हैं, हाइपोथेटिकल हैं, एक्चुअली वो नहीं होती हैं. हम उसको मैथमेटिकली मानते हैं कि वो आइडियल गैस इक्वेशन को पूरी तरह से फॉलो करता है. ठीक है. नाउ वी विल प्लॉट अ ग्राफ टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर. ओके, सो जो हमारा ग्राफ होगा इट विल बी पीवी वर्सेस पी, प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ग्राफ. एंड दिस ग्राफ वी ऑल्सो स्टडीड इन बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ में भी हमने इस ग्राफ को स्टडी किया था. सो वी विल ड्रॉ अ ग्राफ हियर. Here we have PV, here we have pressure. Okay. Now for ideal gases, because they follow the ideal gas equation, so they show the parallel line, means their value will not be changed. So the graph will be a parallel line in case of the ideal gas. तो ये जो parallel line है, it is for ideal गैस. ओके, अब हम और गैसेस लेते हैं. लाइक हमने लिया हाइड्रोजन, ओके, एंड हीलियम. ये हाइड्रोजन सपोज और ये हीलियम, दीज आर लाइटर गैसेस. ओके, हाइड्रोजन एंड हीलियम, एंड दे गिव्स द लीनियर लाइन. वो हमको लीनियर लाइन देता है जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं PV वर्सेस P का. ओके, बट these gases also do not give the parallel line as ideal gases give. Next, अगर हम heavy gases की बात करें, so like कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस, तो वो हमको कुछ इस तरीके से रिजल्ट देती हैं. ओके, सो सपोज मीथेन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, दीज आर हैवियर देन द हाइड्रोजन एंड द हीलियम. तो ये फर्स्ट दे शो द नेगेटिव डेविएशन. पहले वो नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं, मीन्स एज द प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीजेस देन व्हाट हैपन, देयर वैल्यू डिक्रीजेस. सो जो ग्राफ है हमारा इस पैरेलल लाइन से नीचे जाता है, एंड इट शो द नेगेटिव डेविएशन. देन आफ्टर इट कट दिस पैरेलल लाइन, इस पैरेलल लाइन को ये कट करता है, और जिस पॉइंट्स पर करता है वहां पर प्रेशर हमारा 0 हो जाता है. ठीक है ना. उसके बाद में फिर से ये धीरे धीरे करके क्या होता है, राइज अप होना स्टार्ट करता है.
तो ये जो हमने हैवी और लाइटर गैसेस के लिए आइडियल गैस को कंपेयर करते हुए हमने ग्राफ प्लॉट किया, जिसमें हमें ये पता चला whether the gas is lighter or heavier, they do not show the behavior just like the ideal gases. The lighter gases like hydrogen and helium gives the linear line or straight line. As the pressure volume increases, its pressure also increases, and the heavy gases like carbon monoxide, ammonia or CH4, first their value declines, means they show the negative deviation, then after they come to near zero, then after their value increases. So it is a pressure volume versus pressure graph to show the deviation of the gases in comparison to the ideal gases. अभी हमको एक ग्राफ और देखना है, उसे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमको ग्राफ देखना है डेविएशन के केस में, वो हमें प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ देखना है। तो हम इसको देखते हैं। सो प्रेशर वॉल्यूम, ओके। तो एज द प्रेशर डिक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेज। ये हमने लिया आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस, ओके। जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लेते हैं सेम इसी पॉइंट से, ठीक है, इसी पॉइंट से हम ले रहे हैं एक दूसरा लाइन जो रियल गैस के लिए होगा। तो हम लेते हैं उसको, ओके। तो हमने देखा कि सिमिलर पॉइंट से प्रेशर यहाँ दोनों का सिमिलर था, दोनों गैसेस का। इट इज फॉर आइडियल गैस, इट इज फॉर रियल गैस। तो हमने जहां से स्टार्ट इसको किया ग्राफ को, वो पॉइंट दोनों में सिमिलर था। इट मीन्स व्हाट, एट हाई प्रेशर, ये मैक्सिमम प्रेशर है यहाँ पर। तो एट हाई प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द रियल गैसेज इज मोर देन दैट ऑफ द आइडियल गैस। तो ये एक ही पॉइंट पे जब प्रेशर हाई है हमारा, तो रियल गैस का वॉल्यूम तो यहाँ आ रहा है, ठीक है ना, और जो आइडियल गैस है उसका वॉल्यूम इधर है। तो ये वैल्यू बस इतनी, और ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमारा जो रियल गैस का वॉल्यूम है वो हाई प्रेशर पर जाता है। तो हम इसको नोट करेंगे, एट हाई प्रेशर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस is more than the ideal gas, ओके। तो आइडियल गैस है, इसका वॉल्यूम ज्यादा हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मीन्स यहाँ पर। तो इस लाइन पर इनका वॉल्यूम और प्रेशर दोनों ही सेम है। तो जो हमारा लो प्रेशर पर एक वैल्यू वहां ऐसा हो सकता है जहां पर हमारा रियल जो गैस है वो सिमिलर टू आइडियल गैस क्या करे, बिहेव करे। तो हम यहाँ इसको भी नोट कर सकते हैं, एट लो प्रेशर रियल गैस may behave similar to the आइडियल गैस, ओके। तो लो प्रेशर पर वो आइडियल गैस के जैसा बिहेव कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेशर और वॉल्यूम वहां पर सेम है आइडियल गैस की तरह। और लेकिन हाई प्रेशर पर उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, किससे, आइडियल गैस से। तो यहाँ भी डेविएशन शो हो रहा है, मीन्स ग्राफ पीवी वर्सेस पी हो या फिर पी वर्सेस वी हो, दोनों में ही जो रियल गैसेस हैं वो डेविएशन शो करेंगी आइडियल गैसेस के बिहेवियर से। बिकॉज इन रियलिटी नो गैस इज आइडियल गैस, ओनली दीज आर हाइपोथेटिकल गैसेस जिसको हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। एंड only real gases exist in nature, and at two conditions, special conditions, that at very high pressure and very low pressure and the high temperature they may behave like a ideal gas, similar to the ideal gas, not exactly as a ideal gas, okay। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है।
यही टॉपिक्स थे जो हमको पढ़ने थे आफ्टर रिडक्शन. नाउ वी विल गो फॉर आवर नेक्स्ट चैप्टर. हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स. ओके, सो टेक केयर. थैंक यू सो मच.